Good morning class. How are you? Hope you all must be fine. Students, today again I am here and today I have decided that I will do maths lab for you. Today we will do maths lab. And activity number 1 I will start. Activity 1. But before starting the activity I would like to explain that we had already finished these 7 chapters. Ambalika Miss already explained all those chapters to you. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 5, 3, 5, 6, 9 and 19. We will start next chapter tomorrow. I will decide later that which one chapter I am going to start. But before that, I would like to explain activity number 1 to all of you. Class, in activity number 1, we have to show that the product of decimal. As you finish your chapter decimal, activity 1, we have to show that the product of two decimal number is what? This is into decimal 3 into decimal 7. Answer should be decimal 21. But with the lab activity, how we will solve? Decimal 5 into decimal 5 is decimal 25. How we can say that the product of these two decimal is decimal 21 and decimal 25? 0 decimal 21, not 21 exactly. This is decimal 21 and 0 decimal 25. We can't say like this decimal 21 and decimal 25. It will be written as decimal 21, decimal 25. Okay. So as you know that the decimal is the game of tens, hundreds and thousands. उन्हीं नंबर में डेसिमल्स डाला जाता है जिनके नीचे 10, 100 या 1000 आए. तो बच्चे इस एक्टिविटी के लिए टू शो दिस एक्टिविटी मैंने सबसे फर्स्ट वाली डेसिमल 3 और डेसिमल 7 को चूज किया है और डेसिमल 5 और डेसिमल 5 का मल्टीप्लिकेशन आप खुद करोगे. ओके, सो टू शो द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल 3 इंटू डेसिमल 7. अच्छा, अब एक एक्टिविटी के लिए आपको राइटिंग पार्ट क्या क्या है? द वेरी फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द एम. सेकेंडली यू हैव टू राइट डाउन first is A and then second one, let me see, essential knowledge. The second one is essential knowledge. Essential knowledge. Third one is material required. What material you are needed for an activity? Material required. Fourth one is procedure. Fifth one is what you are observing from this activity, means observation. And the last one is outcome. Last one is outcome. These 6 things are necessary to write. बहुत ज़्यादा लेंथी करके नहीं लिखना है इसको. जो आपकी बुक में लिखा गया that is enough. उसको हल्का सा कट शॉर्ट भी कर सकते हो. Okay. Now let us move to the activity. I will rub this. So very first activity is to show the product of two decimal number. So as I had already explained, this is the game of tens, hundreds and thousands. तो हम एक 10 by 10 का ग्रिड बनाएंगे. ग्रिड होता है एक स्क्वायर बॉक्स जिसके अंदर 10 छोटे छोटे 10 by 10 यानी कि अंदर में 100 स्मॉल बॉक्सेस होंगे. तो हम रफली बना रहे हैं, आप अच्छे से बनाइएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अभी इधर से ये मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिया. नाउ आई ड्रॉ वर्टिकली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Guys see, अब ये 10 by 10 का ग्रिड था क्योंकि मल्टीप्लाई हमको डेसिमल 3 को डेसिमल 7 से करना है. तो आई राइट डेसिमल 1, डेसिमल 2, डेसिमल 3, डेसिमल 4, डेसिमल 5, डेसिमल 6, डेसिमल 7, डेसिमल 8, डेसिमल 9 and decimal 10. Here again decimal 1, decimal 2, decimal 3, decimal 4, decimal 5, decimal 6, decimal 7, 8, 9 and
10. ओके गाइस, अभी देखो डेसिमल 3 को डेसिमल 7 से मल्टीप्लाई करना है। इधर हमने डेसिमल 3 कहाँ जा रहा है, 1 2 3 ये है ना, हमने इस तरह से इसको शेड कर दिया डेसिमल 3 को। ओके, आई हैव शेडेड लाइक दिस। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टली ये 3 तक जा रहा है तो हम 3 तक ही शेड करेंगे, और वर्टिकली कहाँ तक जा रहा है, डेसिमल 7, यानी कि डेसिमल 1 था, दिस वाज डेसिमल 1, डेसिमल 2, डेसिमल 3, डेसिमल 4, डेसिमल 5, डेसिमल 6 एंड डेसिमल 7। जस्ट सी, मैंने 7 तक लिया, बट क्योंकि हॉरिजॉन्टली ये 3 तक जा चुका है इसलिए ये इधर भी 3 तक जाएगा। 3 से आगे नहीं जाना है और नीचे 7 से आगे नहीं जाना है हमें। आपके पास पेंसिल है, यू कैन डू मोर इजीली। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है इसको ड्रॉ करना, बिकॉज अब तक हम लोग ग्रीन बोर्ड पे वर्क कर रहे थे एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन वाइट बोर्ड, और हाथ स्लिप कर रहा है इस पर। इट विल टेक टाइम टू सेट। ओके, तो अब आप ये देखो कि जब आपने डेसिमल 3 को डेसिमल 7 से इनटू किया तो कितने बॉक्सेस शेड हो गए। लेट अस चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 बॉक्सेस हम शेड कर चुके। आउट ऑफ कितने बॉक्सेस में से, टोटल थे 100 बॉक्सेस। 10 by 10 मीन्स 100 का ग्रिड। 100 में से 21 बॉक्सेस आई हैड शेडेड। तो व्हाट डज दिस शो, डेसिमल 21, यानी कि कितना आंसर आ गया आपका, डेसिमल 21। तो दिस वाज योर एक्टिविटी 1। अब डेसिमल 5 इंटू डेसिमल 5 आप करोगे। डेसिमल 5 के लिए आपको यहाँ इधर 2 एक्सटेंड करना है और नीचे ये 2 को खाली करना होगा, ठीक है। तब आप ऑब्जर्व करोगे कि 25 बॉक्सेस यूज हो रहे हैं। डेसिमल 5 इंटू डेसिमल 5 के लिए आप देखोगे कि डेसिमल 25 आएगा जब आप इस तरह से शेड करोगे। ओके, दिस इज योर टास्क, ये आपको करना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी। दिस इज एक्टिविटी नंबर 5। होप यू मस्ट अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आएगा बेटा, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। 2 बार वीडियो को वॉच करो, 3 टाइम्स वीडियो को वॉच करो। बट एक रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, बिकॉज यू ऑल आर न्यू फॉर मी, आपने हमसे पहले नहीं पढ़ा है। ऑल ऑफ अ सडन कोई क्वेरी करने से पहले वो वीडियो को कम से कम अच्छे से 2 बार सुने। बहुत सारी कमांड हम साथ का साथ वीडियोस में देते हैं, जिसके लिए आपको दोबारा से मुझे कॉल या मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 में हमें यह बताना है कि लेट मी सी, एक्टिविटी नंबर 5 इज टू प्रूव दैट अ सर्टेन पेयर ऑफ एंगल आर कंप्लीमेंट्री। आपको कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ एंगल्स बताने हैं, वो पेयर बताने हैं जो कंप्लीमेंट्री एंगल शो कर रहे हैं। हम लोग अभी कंप्लीमेंट्री वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं when the sum of 2 angle measure 90 degree. Sum of, so when sum of 2 pair of angle is 2 pair of angle is 90 degree. Means अगर एंगल 1 और एंगल 2 कोई 2 अलग अलग एंगल हैं, अगर ये ऐड होके 90 डिग्री बना देते हैं, सपोज दिस वन इज 30 and the other one is 60, by adding them they are forming 90 degree. तो ये पेयर जो है ये कंप्लीमेंट्री सेट फॉर्म कर रहे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो किस कंडीशन में सेट कंप्लीमेंट्री होगा या पेयर कंप्लीमेंट्री होगा, आई वुड लाइक टू शो यू ऑल। सेम इस एक्टिविटी में भी आपको एम्स लिखना है, एसेंशियल नॉलेज लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है एंड आउटकम लिखना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो, A right angle is a angle जो कि 90 डिग्री फॉर्म करता है, यानी कि अगर हम इसके 2 सेट लें, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, एक ऑब्ट्यूज एंगल अगर हम ले लें इस तरह से, तो मुझे ये एक्टिविटी से शो करना है कि कौन कौन से एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं एक एक्यूट एंगल ले लेती हूँ, एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर सॉरी एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2। देखो बच्चे, हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर है इन तीनों फिगर से
कौन से दो एंगल मिलके 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं? एक ये एंगल और ये एंगल, ये जब भी दोनों एंगल कटने के बाद से ऐड होंगे, शो मी दैट राइट एंगल। हाँ, जस्ट सी, ये मैंने एक ऐसा पेयर बनाया है, ओके ये मैंने इस तरह से एक 90 डिग्री का एंगल शो किया है यहाँ पर, और मैंने इस तरह से इसको एंगल 1 एंड एंगल 2 दिखाया है, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। आप चाहे इसको आप इधर दिखा दो, ठीक है, आप इधर भी दिखा सकते हो, इस तरफ भी दिखा सकते हो। उसको मैंने कटिंग कर दी है इसलिए उधर दिखाना पड़ा, ठीक है। इस तरह से मैंने ये एंगल दिखाया है, एंगल 1 और एंगल 2, इस तरह से दिखाया है, एंगल 1 और एंगल 2। और ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, मीन्स ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। मैंने इन दोनों को कट किया, कट करने के बाद से ये दो एंगल मेरे पास आ गए, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब मैं इसकी पेस्टिंग कुछ इस तरह से करूंगी कि ये मिलके 90 डिग्री बना दे। अगर 90 डिग्री बन जाता है देन इट इज अंडरस्टूड कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखो ये मैंने एंगल 1 पेस्ट किया और एंगल 2 को मैंने यहाँ इसके एज से मिला के इस तरह से पेस्टिंग कर दी। तो व्हाट डज दिस शो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके कितना डिग्री फॉर्म कर रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट एंगल। ये इस तरह से सीधा एंगल दिखा रहे हैं, तो कितना डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक है। अभी ये है, यहाँ पर देखिए, आई शो दिस फिगर टू यू ऑल। इस फिगर में देखो मैंने इस तरह से इसको शो किया है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, और इसकी कटिंग करिए, ठीक है। कटिंग करने के बाद आई एम हैविंग एंगल 1 एंड एंगल 2। देखो ये मेरा एंगल 1 अकेले ही 90 डिग्री शो कर रहा है। तो क्या अगर इस तरह के कोई पेयर मेरे पास आ जाए तो क्या वो कम्प्लीमेंट्री बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो सिंगल एंगल ही 90 डिग्री का हो गया। अगर मैंने इसमें सेकंड एंगल ऐड करा, यहाँ पर एक दूसरा एंगल मैंने ऐड किया, तो ये तो एंगल जुड़ने के बाद से ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है ना, क्योंकि 90 तो यही एंगल 1 ही 90 हो गया और ये 90 से बड़ा है। तो दिस पेयर कांट बी अ कम्प्लीमेंट्री एंगल। Now let us have one more example of acute angle. ये acute angle है लास्ट वाला। ये लास्ट वाला मैंने acute दिखाया है, 90 डिग्री से छोटा दिखाने की कोशिश करी है मैंने। देखो ये दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, और इसकी कटिंग भी इस तरह से करिए, एंगल 1 एंड एंगल 2। I'll show this to you। अभी आप इसको किसी भी तरह से जोड़िएगा तो ये स्ट्रेट एंगल नहीं फॉर्म करेगा। तो मैंने इसकी सेलो टेप हटाने के बाद से ये एंगल 1 है, आई जस्ट पेस्टेड इट लाइक दिस। अभी इसमें मैं एंगल 2 पेस्ट करूंगी, एंड बाय पेस्टिंग दिस एंगल 2 यू कैन सी कि ये एंगल 90 डिग्री से छोटा जा रहा है, इसने 90 डिग्री भी नहीं बनाया, ठीक है। तो हाउ कैन वी से कि ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री होगा? अगर ये ऐसे स्ट्रेट जाता तो ये 90 डिग्री होता, बट ये 90 डिग्री से लेस है, तो दिस कांट बी द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दिस कांट बी द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओनली दिस इज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो विद दिस एक्टिविटी यू हैव टू शो दैट एक सर्टेन एंगल्स हैं जो जुड़ के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे क्लास। You have to solve these 2 activities and I will check these on Saturday। मैंने अभी कल